Deuteronomy 4:11. You came near and stood at the foot of the mountain while flames from the mountain shot into the sky. The mountain was shrouded in what? Come on. Black clouds and deep darkness. तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था. In the Old Testament, it was a sign of when God comes in that mountain. It was like, don't touch it because you're going to die. It was this because of sin. It was a sign of judgment. पुराने नियम में जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है तो वो घोर अंधकार में और उस बादलों में करता है और वो पहाड़. Because hear this, कि आपको समझ में आया. A sinful man cannot know God. एक पापमय मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता. पाप में एक व्यक्ति परमेश्वर को ना जान सकता है ना देख सकता है. परमेश्वर ने अगर देख लिया तो तुम मर जाओगे. A sinful man can neither know God nor see him, and he said if you saw you would die. Okay. So in Old Testament God wrapped himself in darkness. So पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को अंधकार में छा लिया. और 3 घंटे हो गए and it's darkness. It's been 3 hours, it's still dark. What is the cry of humanity? मनुष्य की क्या कहा? Where are you? My God, why have you forsaken me? कहाँ है परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And instantly और उसी वक्त his cry was heard. उसकी कर रहा सुनी गई. Amen. And then when he has paid the price, और तब जब उसने दाम चुका दिया, Jesus said, it is finished. यीशु ने कहा पूरा हो गया. Now I want to show you something. Oh hallelujah. जब यीशु मसीह ने कहा it is finished, आप जानते हैं क्या हुआ? When Jesus said it is finished, do you know what happened? पर्दा, मैंने क्या किया? परमेश्वर क्या करता था पुराने नियम में? अपने आप को छुपाता था. In the Old Testament, in the Old Covenant, God would hide himself. वो होली ऑफ होलीएस्ट में जो था एक पर्दे के पीछे है. He who was in the holiest of holies was behind a curtain. सुनो, परमेश्वर कहाँ था? Where was God? पर्दे के पीछे. Behind the आपको curtain. लगता होगा जैसे आपके घर के पर्दे ना, वैसे ही वो पर्दा था. Now you think the curtain there is the curtain, like the curtain in your house. अगर थोड़ा आप रिसर्च करोगे If you research और आप a bit. टैलमंड पढ़ोगे, जो ज्यूइश की किताब है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है. आप जानते हैं, it says, Talmud says, it took 300 priests to handle and move the veil. कितने? 300 पुजारी चाहिए होते थे उस पर्दे को हिलाने के लिए. ये क्या दर्शाता है? What does it show? कि परमेश्वर के पास आप इतने इजीली नहीं आ सकते. That you could not come to God so easily. समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? 300, और वो इतना मोटा होता था It used to be so thick. कि उसको फाड़ना इम्पॉसिबल था. To tear it apart was impossible. ओके. मगर जब यीशु मसीह ने पूरा पाप, पूरा श्राप हमारा ले लिया और उसने कहा इट इज फिनिश, बाइबल कहती है ऊपर से वो पर्दा फाड़ डाला गया. But when Jesus took all of our sin and all of our curse और कहा समाप्त हुआ, the veil was torn from the top down. अब परमेश्वर कह रहा है मुझे मनुष्य जाति से छुपने की जरूरत नहीं है. अब वो मेरे बेटे और बेटियां बन चुके हैं. Now God is saying I have no need to hide from mankind, they are my sons and daughters. हालेलुया. ओके. अब पर्दा क्या बना? Now what is the veil now? पर्दे के पीछे पुराने नियम में क्या था? संदूक का वाचा था. Behind the curtain was the Ark of the Covenant. और जब ये मिस्ट्री है, ये भेद की बात है, लोगों को नहीं पता, रोमन्स को नहीं पता था कि जब वो उसका मांस फाड़ रहे थे वो क्या कर रहे थे. The Romans did not know what they were doing when they were tearing his flesh. जानना चाहते हो? You want to know? Okay, Hebrews 10:19-20. इब्रानी 10:19. Therefore, brethren, इसलिए है भाइयों, having boldness to enter the holiest, कहाँ पे? Holiest, by the blood of Jesus, by a new and a living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से
पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ध्यान से हियाव सुनो। हो गया है। अब एक नया और जीवता मार्ग है परमेश्वर के पास जाने Now का। there's a new and living way to come before God, ओके, आगे। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। सो जब यीशु का शरीर फाड़ा गया, वो पर्दा भी फाड़ा गया When और हमारा अब हम अति पवित्र स्थान में हियाव के साथ, बोल्डनेस के साथ जा सकते हैं। When his flesh was torn, that veil was torn, and now we can come boldly before the throne of grace. हालेलुया। रोमियो को नहीं पता था कि जब वो उसका मांस फाड़ रहे हैं, वो उस पर्दे को फाड़ रहे हैं जो मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच में था। The Romans did not know when they were tearing apart his flesh, they were tearing apart the veil between God and man. ओ हालेलुया। अब सबसे बढ़िया बात, This is the best thing. अब परमेश्वर काले बादल में नहीं आता लोगों के पास। Now God does not come in a dark cloud to his people anymore. रेवलेशन 14:14। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 14. ओ हालेलुया। तैयार हो आप? Are you ready? Then I looked and behold a white cloud. Hallelujah. मैंने काला दृष्टि की- बादल अब सफेद बादल हो चुका है, क्योंकि कोई पाप की छाया नहीं है। The dark cloud is now a white cloud because there is no shadow of sin left. Then I behold a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man. अब सुनो, अब परमेश्वर छिपा नहीं है, but openly दिखाई देता है कि वो यीशु मसीह उस सफेद बादल के ऊपर बैठा हुआ है। God is not hidden anymore, but he has revealed himself as Jesus sitting on the white cloud. हालेलुया। जब परमेश्वर छुपा था तो केवल काला बादल दिखाई देता था। When God was मगर अब hidden- परमेश्वर कह रहा है, मैं मानव जाति से अपने आप को छुपाऊंगा नहीं। वो सफेद बादल के ऊपर बैठा है। और पढ़ो साथ में, मैंने दृष्टि करी और देखो एक उजला बादल है। हालेलुया। ये दर्शाता है अब पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में नहीं है। This shows the sin is no longer between God and man. एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। हालेलुया। अब सुनो, Now here, पुराने नियम में कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, in the old covenant no one could see मगर God. नए नियम में But in the new यीशु covenant- ने कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देखा है। Jesus said, he हालेलुया। who has seen me has seen the अब Father. हम परमेश्वर के चेहरे को निहार सकते हैं। Now we can अब हम behold the परमेश्वर face को of the देख Father. सकते हैं, We can क्योंकि behold अब हम God. पाप में नहीं, अब हम धर्मी ठहराए गए हैं यीशु में। Because we are no longer in sin, we are made righteous in Jesus. हालेलुया। आमीन। अब कोई पर्दा नहीं, There is no longer any veil. एक ही बार वो पर्दा फाड़ डाला गया। Once and for all, that veil was torn apart. और अब परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी हियाव के साथ अब जानते हैं, पुराने नियम में You know, in the साल old में covenant- एक बार योम किपुर, डे ऑफ अटोनमेंट, एक बारी One day in a year, जो महायाजक था, पूरे इजराइल में एक व्यक्ति को चुना जाता था। one person among the entire nation of Israel was वो chosen. भी एक भविष्यवाणी की तस्वीर थी That was a prophetic picture. कि एक व्यक्ति The one man रिप्रेजेंट करेगा पूरी सारे परमेश्वर की प्रजा को, लोगों को। will represent God's people. वो जो पुजारी था, That अगर वो high priest- अति पवित्र स्थान में चला गया कुछ पापों के साथ, if that high priest went into the holy place, most holy place with some sins, he would die. हालेलुया, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट विद गॉड। पूरी रात मुझे लगता है ऐसे वो सोचता होगा अपनी बीवी से, अरे कुछ बता, कुछ करा तो नहीं मैंने पाप, अरे तू बता। So he would be asking his wife, tell me if there's anything that I have done. और बाइबल कहती है डरते और कांपते हुए। कैसे? डरते और कांपते हुए And the Bible tells us, afraid and trembling, they would वो पर्दे के अंदर जाता होगा। enter into the veil. और जो महायाजक का जो कपड़ा था उसमें घुंघरू और अनार बंधा होता था। And in their clothes they would tie bells. और बाहर से याजक सुन रहे होते थे।
and the priests outside would be और hearing, उसके कपड़ों से एक रस्सी बाहर होती थी. and there would be a rope from his clothes. अगर आवाज आनी बंद हुई बहुत टाइम तक, If for a long time the sound stops, नए हाई प्रीस्ट की ओपनिंग, there is an opening for a new high priest. बिकॉज ये हाई प्रीस्ट गए Because this one is gone. तो रस्सी से बाहर खींच लेते थे. They would pull him back with a rope. आप समझ रहे हो क्यों You know why? यहूदी लोग नहीं समझे? Why Jewish people did not understand? Why they hated this message? क्यों उनको नफरत हुई क्योंकि वो संदेश? धर्म की आत्मा के अधीन थे. Because they were under the spirit इसीलिए of बाइबल religion. अब कहती है we are not under the spirit of slavery, The Bible says हम बंधुआई की आत्मा के अधीन नहीं है. कि हम फिर से डरें, That we would be मगर fearful हमें again. लेपालकपन का आत्मा दिया गया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर कहलाते हैं. But we have received the spirit of adoption by which we call him Abba Father. तो क्या हुआ जब यीशु की मृत्यु हुई? मंदिर का जो पर्दा फाड़ डाला गया. आप जानते हैं उसके बाद से क्या हुआ? बलिदान बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर का कोई बलिदान की जरूरत नहीं. आज भी जो जुडाइज्म है वो नहीं है जो बाइबल में था, बिकॉज दे आर नॉट ऑफरिंग सैक्रिफाइस. At the death of the cross, at the death of Jesus, the veil was torn apart, and the offerings they stopped. And even today, the Jewish religion today is not the same as that. मैं एक ना बड़ी खतरनाक चीज देखता हूँ. I see a very deadly कई thing. मसीह लोग हैं वो इजराइल जाते हैं, Many Christians they go to Israel, और इजराइल जाके फिर उन्हें यहूदी बनने का शौक चढ़ जाता है. and then they get inspired to become Jews. और उन्हीं मसीहों के लिए पौलुस ने गलातियों की पुस्तक लिखी और बोला, हे निर्बुद्धि गलातियों, And for these Christians, Paul wrote in Galatians, "You foolish Galatians, कि तुम स्वतंत्रता से क्या वापस तुम बॉन्डेज की तरफ जा रहे हो? do you want to go back from being free into bondage again?" अब पौलुस पुट Hebrews 4:16, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. इब्रानी अब परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए डरते और कांपते हुए नहीं जाना. मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल देखते हैं क्या कह रही है. ठीक है, Now we don't need to tremble when going into His presence. Look at the Bible. ओके. इसीलिए आओ हम अनुग्रह. एक मिनट, ये क्या हो गया? Let us. अरे वहीं द जजमेंट सीट where the blood was applied became the mercy seat. वो न्याय का स्थान जहां पर लहू लाया गया, वो अनुग्रह का सिंहासन बन गया. हालेलुया. और अब बाइबल कह रही है डरते और कांपते नहीं, मगर कैसे? हियाव से. कैसे? हियाव से, बोल्डली. हालेलुया. कैसे कह रहा है? पर आपका पिता कैसे कह रहा है? मेरी उपस्थिति में कैसे आ? जैसे मेरा बेटा और बेटी है. Now God is saying, "Come boldly into my presence like you're my son, my daughter." अगर मैं आपके घर आया और आपका बेटा रहे, If I come to your house and your child वहां is पे बिस्किट है, coming बिस्किट like this, लेने, मुझे लगेगा बड़ी डिसफंक्शनल फैमिली है. I will think it's a very dysfunctional family. गॉड इज नॉट डिसफंक्शनल फादर, परमेश्वर एक dysfunctional पिता नहीं ही है, इज अ गुड फादर. एक अच्छा पिता है वो. वो कह रहा है लहू बह चुका है, पर्दा फाड़ डाला गया है, लहू बह चुका है. अब हियाव से मेरे बेटे और बेटी मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आ. He's saying the blood has been shed, the veil has been torn. My son, my daughter, come boldly before my throne of grace. हालेलुया. आप जानते हैं ये गाली है, एक यहूदी के लिए ये गाली थी. This was a blasphemy for a Jew. कह रहा है, क्या कह रहे हैं पौलुस? They're saying, what is Paul saying? उठाओ पत्थर अभी मारो Take up इसको. stones and ये फॉल्स throw it. टीचर He's a false teacher. क्या बोल रहे हैं? What is he saying? आज के समय में ना मैं हैरान हूं. I'm अगर surprised. कोई ये वचन से ये दिखाता है तो आज लोग बोलते हैं फॉल्स टीचर है. और कोई बोले परमेश्वर तुम्हें कढ़ाई में तेल में तलेगा, श्राप आ जाएगा, दुष्ट आत्मा. क्या प्रचारक है, वाह. If someone shows from the word, then people tag them as false teachers. But those who are preaching judgment and doom and gloom, people praise them. अरे आपके सामने वचन खुला है. The एक word अंधा ही is होगा open. जो ये नहीं देख सकता. Only a blind may not see this. अब फिर से लगाओ भाई, हिब्रूज लगाओ दोबारा. हालेलुया. ओके, हालेलुया. हिब्रूज 10:19 से 20 दोबारा लगाओ.
आप बोलोगे नहीं नहीं उस आयत का मतलब वहां पे वो नहीं है, तो छोड़ दो वो आयत, आपको नई आयत में लेके चलते हैं. You will say, no, no, that doesn't mean that. So leave that. I'll take you to a new one. ओके अब आप जानते हैं बाइबल में ना अपनी इंटरप्रिटेशन घुसाने की जरूरत नहीं है. Don't interpret the Bible as per yourself. इसका आत्मिक मतलब ये है, जैसा लिखा है वही उसका मतलब है. The spiritual ठीक meaning है? is that. No. जो लिखा है वही उसका मतलब है. What is written, that's what it means. हालेलुया. Angel of death did not see the blood and their works. आप ध्यान से सुनना. ये कई कैसे? लोग कहते हैं अच्छा तो मतलब ये सिखा रहा है कि अपना घुसाओ मत जो मैंने सिखाया नहीं. Some people say, oh, he's saying do whatever you want to do. I'm not saying that. Hear carefully. अरे जब उस पवित्र स्थान में जाने लग जाओगे तो पवित्र जीवन जियोगे भैया. When you will go in the holiest of holies, you will live a holy life. हालेलुया. बाइबल कहती है, मैं देखिए मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं मगर मैं बता रहा हूं आपको. तो हर समय चिल्लाना पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं. अरे सुसमाचार पाप नहीं करना नहीं है, सुसमाचार पुत्र के बारे में है भाई. The gospel is not do not sin, do not sin. The gospel is about the son. सुसमाचार के अंदर हम लोगों को जरूर सिखाते हैं, In the gospel, we teach the people. मगर बाइबल में ये भी लिखा है तुम जो व्यवस्था के कामों के कारण धर्मी होना चाहते हो तुम मसीह के अनुग्रह से परे हो चुके हो, दूर हो चुके हो. But the Bible also says, you who is trying to be justified by your own works, you have fallen from the grace that is in Christ. पुराने नियम में In the old covenant, जब सांप आए और इजरायलियों को काट लिया when the serpents came and bit the Israelites, और मूसा परमेश्वर के पास गया दुहाई देने, and Moses went before God to cry out. परमेश्वर ने कहा ब्रॉन्ज का एक सांप बना और पोल में उसको उठा, God said, make a brazen serpent and put it on a pole. जो वो तस्वीर थी कि यीशु मसीह के ऊपर वो जजमेंट को ले लेगा पूरा. और परमेश्वर ने मूसा ने को कहा कि जो कोई इजरायली इस उठाए हुए सांप को देखेगा वो चंगा हो जाएगा. And God said to Moses, whoever will look at this brazen serpent would be healed. आज क्यों कई मसीह चंगे नहीं होते? आप जानते हैं वो कहाँ देख रहे हैं? यहाँ. Why many? परमेश्वर क्या कह रहा है? कहाँ देखो? क्रूस की ओर. Why many? क्या तुम्हें चंगाई देगा? क्रूस की ओर देखना. हमें धार्मिकता कैसे मिलती है? क्रूस की ओर देख के. हमें हियाव कैसे मिलता है? क्रूस की ओर देख के. Why many believers are not healed is because they are looking at themselves. Where do we get our boldness, our righteousness? By looking at the cross. So वो नहीं देख रहे जो मसीह ने किया. They are not seeing what Christ has done. अरे पास्टर, Oh, pastor, अरे मैं उपवास कर करके थक गई हूँ, मैं चंगी क्यों नहीं हो रही हूँ? I'm tired of fasting. Why am I not getting healed? क्या परमेश्वर ने इजरायलियों को ये बोला इनको उपवास करने को बोलो? Did God tell the Israelites to fast? क्या बोला? What did He say? उस सांप की ओर देखो. Behold the brazen serpent. Look at the cross. क्रूस की ओर देखो. क्रूस की ओर देखो. आपकी बीमारी, आपका कैंसर, आपका श्राप यीशु के ऊपर डाला गया ताकि आप एक मसीह में नया जीवन जियो. Your sickness, your cancer was put on Jesus so that you can live a new life in Christ. हालेलुया. अब परमेश्वर आपसे छुपता नहीं है. Now God is not hidden from you. जो वो 3 घंटे थे The 3 hours वो दर्शाते हैं पूरा साइलेंस परमेश्वर का जो ह्यूमैनिटी के ऊपर. shows the silence of God towards mankind. बट नाउ लेकिन अब यीशु ने कहा यूहन्ना 10:27 में मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं. Jesus said in John 10:27, my sheep hear my voice. हालेलुया. Hallelujah. उसका मांस जो फाड़ा गया वो पर्दा भी फाड़ा गया. His flesh that was torn apart, that veil अब also was torn याव apart. के साथ उस अनुग्रह का सिंहासन, कौन सा सिंहासन? न्याय का सिंहासन नहीं, अनुग्रह का सिंहासन. Now come boldly before the throne of grace, not judgment throne, but the throne of grace. Put the scripture again and then we are going to pray. Hallelujah. आज कम सिखाऊंगा मैं थोड़ा. अरे भाई इतना कम सिखाया, हंस क्यों रहे हो? लास्ट संडे 6:45 घंटे की सर्विस थी. आप बोलो तो मैं सिखा सकता हूं अभी. और कई लोग ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ. आमीन. मगर मैं बता रहा हूं क्रूस की कथा इतनी महान है. The story of the cross is so जो mighty. मसीह ने हमारे लिए किया है वो इतना महिमा से भरा है. मैं आपको बता रहा हूं करोड़ों साल भी हमें कम पड़ेंगे
उसको धन्यवाद देने के लिए। What He has done for us billions of years are less to thank Him. आप जानते हैं बाइबल हमें इफिसियों की पत्री में बताती है कि जो महान अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, हमें ईओन्स यानी एजेस, मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे उसके अनुग्रह को समझने के लिए जो उसने हमारे लिए किया। The Bible says it will take us eons to understand the mighty grace that is being shown on us. मैं आपको बता रहा हूं, जब हम अपनी सांस यहाँ पे बंद करेंगे और उसके साथ जिएंगे, When we'll breathe our last here and start to live with Him. जब भी आप उसके चेहरे को देखेंगे आप धन्यवाद से भर जाएंगे। When you will look at His face, you will be filled with gratitude. आप उस प्यार को देखेंगे जो उसने आपसे किया। The love that He has loved you with. आमीन। आप मसीह में हो, इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग नहीं है। You're in Christ. There is no greater blessing than that. आमीन। आप कनाडा में हो या नहीं हो, मगर आप मसीह में हो तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। Whether you are in Canada or not, but if you are in Christ, that is the greatest blessing. Amen. Nothing against Canada. Canada से कुछ दुश्मनी नहीं है। Just not a very good time to go to Canada. बस बहुत अच्छा समय नहीं है कनाडा जाने के लिए। सबको कनाडा जाना था। Everybody wanted to go to इतने Canada. ज्यादा चले गए पूरी इकोनॉमी की वाट लगा दी। So many people went to Anyway. economies down. अब क्या हुआ, कई लोग निराश हो गए। Now many are लगा था disappointed. वहाँ हरी चराइयाँ हैं, They thought it's green pastures there. मसीह में हरी चराइयाँ हैं। Green pastures are in Christ. अगर इस प्रकाशन को समझ गए कि आप मसीह में कौन हो, तो जहाँ जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस घर में रहते हो, वहीं उसकी आशीष को देखोगे। If you understand this revelation that you are in Christ, wherever you live, you will see His blessing. आमीन। और आप तो देखोगे ही, खुदा आपके पड़ोसियों, आपके रिश्तेदार सबको दिखाएगा। Not just you will see, but God will show it to all your neighbors, your क्योंकि relatives. बाइबल कहती है promotion does not come from the east, promotion doesn't come from the west, promotion doesn't come from the north, promotion doesn't come from the south, promotion comes from the Lord. क्योंकि प्रमोशन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं, प्रभु से आपको मिलता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जितना आप मसीह के ज्ञान में, किसके ज्ञान में? आज जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कलीसिया में? हाँ, The greatest trouble in churches, आज क्या है? उनको ज्यादा सीखने हैं पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, they want to learn about generational दुष्ट curses, आत्माएं, demons, लाल मून हो जाएगा। क्या red होगा? blood moon. बताओ मुझे 7 तुरियां जब फूकी जाएंगी। Tell me when और 7, मसीह ने क्या किया वो नहीं पता। but they have no idea what Jesus has done. एक व्यक्ति मुझसे बहस कर रहा था, बोल रहा था आप सेकंड कमिंग के बारे में क्यों नहीं बताते? मैंने कहा भाई पहले फर्स्ट कमिंग के बारे में तो जान ले। तुझे ये नहीं पता फर्स्ट कमिंग से यीशु ने क्या किया, तुझे सेकंड कमिंग जाननी है, वो भी बताएंगे। भाई पहले फर्स्ट कमिंग तो जानो, मसीह ने क्या किया आपके लिए। One man was arguing, you don't teach about second coming. I said, first know about the first coming, what Jesus has done. आपको नहीं पता, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, तैयार करो तैयार करो। अरे वही यीशु आ रहा है जो आपके अंदर रह रहा है, वही यीशु आ रहा है जो कहता है मैंने तुझसे अनंत से प्रेम किया है। Oh, Jesus is coming, you have to prepare. You have, the same Jesus who lives in you is coming. The same Jesus who said, I have loved you eternally is coming. क्योंकि गॉस्पल नहीं समझा ना, जो इफिसियों, कुलीसियों, रोमियों, हाँ कुलोसियों, गलातियों, ये नहीं समझा। 10 कुंवारी पकड़ ली। Because they did not understand the gospel, just took hold of that one story of 10 virgins.